جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا جی. کچھ باتیں بلکہ بہت ساری باتیں انتہائی افسوسناک ہیں. ٹھیک. اگر مثلاً یہ جو ان کیمرہ بریفنگ ہو رہی ہے، یہ اس کا ایک پہلو اتنا زیادہ افسوسناک ہے کہ یہ اس کا مطالبہ آرمی چیف کی طرف سے آیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت اس پہ انیشیٹو لیتی ہے. کوئی آرمی چیف کا کام نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں یہ کہے کہ جی آپ اجلاس بلائیں پارلیمنٹ کا اور ہم آگے بریفنگ دیں گے. لیکن یہ میرے نزدیک یہ بہت انتہائی افسوسناک اس لیے پہلو ہے کہ حکومت نے چونکہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. حکومت بہت یعنی کہ صورت کے ساتھ بہت سارے کام تو کر رہی ہے، لیکن جو اصل کام ہے وہ نہیں کر رہی. آپ نے دیکھا کہ 2 مئی کی رات کو بھی وہ بڑے بزی تھے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بڑی رونقیں تھیں، لوگ اٹھا رہے تھے، نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، سودے بازیاں ہو رہی تھیں، لیکن کسی کو ہوش نہیں تھا کہ اس ملک کے عوام پہ کیا بیت رہی ہے. اور پورا ملک لرز رہا تھا، پورے ملک میں سکوت تھا، ابھی تک سکوت طاری ہے. اور آپ اچھا اب پارلیمنٹ میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ یہ ایک پہلو ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ آرمی نے وہاں پہ بریفنگ دینی ہے، لیکن اب بھی ہمیں کہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ حکومت نے کیا کرنا ہے. مثلا حکومت نے کیا ہے اب تک. میں کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کرنا چاہتا، جو ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. مثلا پہلے دن تو بڑی تیزی کے ساتھ ریئیکٹ کیا حکومت نے کہ آصف زرداری صاحب کا ایک مضمون جو ہے وہ چھپ گیا واشنگٹن پوسٹ میں، پاکستان میں کہیں نہیں چھپا، اور ایسا لگا کہ یہ شاید ایبٹ آباد کا واقعہ ہونے سے پہلے کہیں لکھا ہوا تھا، کیونکہ اتنی جلدی مضمون جو ہے چھپ جانا اور اس میں پھر یہ کہنا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ قاتل ہے بے نظیر کا اور اس نے 2 دفعہ حملہ کرنے کا فلم. یہ عجیب و غریب بات تھی. جو آپ اصل ایشو ہے آپ نے اس سے صرف نظر کیا ہے. آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ جو امریکن ہیلی کاپٹر آئے ہیں کیا یہ جائز آئے ہیں، کیا آپ کا کوئی معاہدہ ہے؟ اگر معاہدہ ہے تو وہ بتاتے، اگر معاہدہ نہیں ہے تو آپ کہتے کہ ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں اور ہم کسی قیمت پہ اس کو برداشت نہیں کرتے. اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آئندہ اگر یہ ہوا تو ہم یہ کریں گے. آپ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ ایکشن لے کے بتائیں گے تو عوام جو ہے ان کو کچھ تھوڑا سکون ملے گا، اور وہ آپ پہ اعتبار جو ہے جو کہ بالکل ختم ہو چکا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ پہلے دن کہا کہ جناب یہ فتح عظیم ہے، یعنی کہ فتح مبین ہے. اب جس چیز کو آپ ایک پہلے دن فتح عظیم کہہ رہے ہیں، اب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آپ یہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے. مطلب یہ عجیب و غریب انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے، یہ پورے حکومتی ڈھانچے کا اور انٹیلیجنس کولیپس ہے میرے نزدیک. اور اتنا بڑا کولیپس ہے کہ اس کے اوپر ابھی تک کہ جی پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں تو آپ کا اس میں کیا تعلق ہے؟ ہمیں حکومت یہ بتائے کہ کیوں اس نے ابھی تک یہ بات امریکہ سے نہیں کی کہ آپ نے ان کے امریکن ایمبیسیڈر کو کیوں نہیں بلایا ابھی تک انہوں نے طلب کر کے، اور اس سے احتجاج کیوں نہیں کیا، اور اس کو یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ یہ جو ہے آپ نے جارحیت کی ہے، آپ نے ہمارے ملک پہ حملہ کیا ہے. دیکھیں اسامہ بن لادن کے واقعے کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ کہ ہمارے ملک پہ حملہ ہوا ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اس کا وہاں پہ مرڈر ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب تو امریکہ میں سوالات اٹھ رہے ہیں. امریکہ کے بڑے بڑے پارلیمنٹیرین بھی اور ان کے فلاسفر جو ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. اس لیے مشاہد صاحب کہ کوئی پروف نہیں دیا گیا نا. دیکھیں کوئی پروف نہیں دیا گیا. اس کے ساتھ جو دیگر لوگ آپ نے مارے ہیں ان کی تو آپ نے تصویر شائع کر دی، یا آپ نے کہا کہ یہ گرافک امیجز ہے. دیکھیں یہ کوئی 2 ٹوک بات ہے، اس سے اسامہ بن لادن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. یہ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ وہ ایبٹ آباد سے برآمد ہو گیا. کاش وہ اس ایبٹ آباد کی جگہ افغانستان سے برآمد ہو جاتا جہاں پہلے ہی تورا بورا پہ یہ بم مارتے پھر رہے ہیں، تو ہماری اتنی بدنامی نہ ہوتی. لیکن ڈیمیج کنٹرول کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ فیصل رضا عابدی صاحب جو باتیں مشاہد اللہ صاحب نے اور ماروی صاحبہ نے کی ہیں، اس حوالے سے حکومت کے پاس ڈیمیج کنٹرول اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا بتا رہے ہیں؟ کیا بریفنگ ہے؟ فورن آفس کے ساتھ کیا آپ کا جوڑ توڑ ہے؟ مطلب there is a mass confusion campaign going on in Pakistan. شکریہ آپ کا. میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ جس طرح جمعے کی گفتگو کی گئی ہے، جمعے کو تو ان سیشن ہے اور جوائنٹ سیشن ہے جس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے ضرور آئیں گی. لیکن کل سینٹ کے اندر جو ہے صبح 11 بجے وزیر اعظم پاکستان اس پہ پالیسی پہ بات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کافی چیزوں کے کل بھی جواب مل جائیں گے، اور جو رہ جائیں گی اس کے جمعے کو بھی جواب مل جائیں گے. لیکن میں شروع کروں گا، ایک لفظ یہاں پر آیا کہ جس رات یہ واقعہ ہوا
उस दिन ऐवान सदर में कोई बंदर बाट हो रही थी, बंदर बाट नहीं थी, और ये आप जानती हैं कि 2 सियासी जमातों का इल्हाक था जो गुज़िश्ता 15 दिन से मौजूद बहस था टेलीविज़न पे। जी। चौधरी निसार साहब ने 1 मई को 2011 को एक निजी टेलीविज़न के अंदर बैठ के कहा कि हालात तय पा गए थे, लेकिन PMLQ बैकआउट कर गई, यहाँ तक कि हमने चेयरमैन सेनेट की ओहदे की ऑफ़र की थी शुजात साहब को। तो जहाँ आप इलाक करने की कोशिश करें वो इलाक कहलाता है, जहाँ हम कर लें वो बंदरबाट कहलाती है, जहाँ आप करें वो पार्लियामेंटेरियन हो जाते हैं, जहाँ हम करें वो लोटे हो जाते हैं, जहाँ आप करें वहाँ आप उनको अरकान सेनेट और मोअज़्ज़ज़ अरकान कौमी असम्बली करार दें, और जहाँ हम उनसे एक जमात से गुफ्तगू कर लें तो आपको मोने सिलाई भी याद आ जाता है, स्कैंडल भी याद आ जाते हैं, केसेस भी याद आ जाते हैं। तो ये एक गलत रिवायत है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। 2 जमातों का इलाक़ था। बहरहाल चूँकि मारवी मेमन कह रही हैं कि अब उन्होंने अपोजिशन के लिए सीट अलाट की है, इसका जवाब तो बाकी PMLQ ही देगी, लेकिन जो एक असूलन एक क्वेश्चन था मेरे जहन में वो मैंने आपके सामने इसको पेश किया। दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताऊं कि हम तमाम लोग सही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान इस वक्त जो है वो तवज्जो का मरकज़ है, आज से नहीं है 10 साल से है। और गुजारिश सिर्फ आपसे इतनी है कि जहाँ जिस पेड़ पर भी फल लगता है पत्थर हमेशा वहीं आया करते हैं। हम आखिर ये इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं, आप भी शऊर रखती हैं, हम भी रखते हैं, मुशाहिद भाई भी रखते हैं, हम आखिर ये चीज़ क्यों नहीं सोच रहे कि वो वजूहात क्या हैं जिससे दुनिया के 48 ममालिक हमारी तरफ सवालिया निशान नज़रों से देख रहे हैं। वो आखिर वजूहात क्या हैं? वो वजूहात ये हैं कि पूरी दुनिया के जिहादियों ने यहाँ पे पनाहगाह बना के और पूरी दुनिया पे हमले करके उसको कबूलना शुरू कर दिया है। आप एक असामा के ठिकानों की गुफ्तगू तो ज़रूर करें, लेकिन बाकी जो जिहादी आज भी मुख्तलिफ सिफारत खानों में होने वाले धमाकों को शुमाली वज़ीरिस्तान में कबूला जाता है, तो पूरी दुनिया ये नहीं समझेगी कि वो कौन है, वो यही समझेगी कि शायद दहशतगर्दों की पनाहगाह है और इनको ख़त्म करने के लिए यहाँ बदला लेने चलो। अगर कोई दहशतगर्द गायबाना नाजा पड़े, मैं तो नहीं कहता, चले दुनिया तो मानती है ना एक हाफिज सईद को, अगर उसको बार बार टेलीविजन पे दिखाया जाएगा तो इंडिया वाले भी फिर ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे इतनी आज़ादी है दहशतगर्दों को, तो हम तो खुद इस चीज़ का सबसे बड़ा हिस्सा है। अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने मुल्क की इज्जत का जो है ना खुद दिवालिया निकालते हैं। ठीक है, सियासतदान कहीं ना कहीं ज़रूर जिम्मेदार हैं, ठीक है, फौजी अफसरान कहीं ना कहीं ज़रूर जिम्मेदार हैं, लेकिन एक चीज़ को मंजर आम पे आने दें। जुम्मे को आ जाएगी, उसके बाद आपके लिए तमाम बहस के ये प्लेटफॉर्म जो है खुले हैं, आप भी कीजिएगा, मैं भी करूंगा। जब हम गलत होंगे अपनी गलती से, आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा फैसल। देखिए ये इस वक्त क्योंकि सिचुएशन ऐसी है और मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ, जहां उसामा बिन लादेन इतनी बड़ी डिबेट का हॉलमार्क बना हुआ है पाकिस्तान में, वो ऑब्वियसली नंबर 1 टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड था, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, वांटेड बाय सेवरल कंट्रीज एंड स्पेशली बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ सिर्फ सवाल एक होता है कि अगर आपने उसे मार दिया है, अगर आपने उसको खत्म कर दिया है, तो फिर ये दहशतगर्दी का एक चैप्टर बंद होना चाहिए। इस हवाले से क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई स्ट्रैटेजी बना रही है? आपकी बात सही है, लेकिन मैंने आपसे गुजारिश की ना कि देखें हम भी तो अपने गिरेबानों में एक बार झांक लेना। हमारे यहाँ ही सुरंगें निकली थी, हमारे यहाँ ही महफूज पनाहगाहें निकली थी, हमारे ही गार जो है मुस्तफीद थे। आप मुसलसल हम भी देखते आए 2 साल से, तो ये माजी के चले हुए ये कारस्तानियाँ जो थी, ये तो आप समझ में आ रही है ना कि कितना मजबूत नेटवर्क था। मैं तो सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, क्या अमरीकी सदर में या अवाम में या उसकी फौज में इतनी हिम्मत है कि ये दहशतगर्द हमारे पास ना और वो फिर उंगली उठाए, और उसके बाद क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तानी को इतने बेगैरत है किसी की उठी हुई उंगली का हाथ निकाल के उसके हाथ में ना दे दें? क्या मकसद है? आखिर उंगलियां जो उठ रही हैं वो दहशतगर्दों की वजह से उठ रही है ना। तो हम सारी बात कर रहे हैं मुशाहिद भाई से, एबटाबाद के गैरिसन से नंबर 1 अलकायदा का लीडर पकड़ा गया, 5 साल से वो पनाह गुज़ीर था, और आप उंगलियां भी लोग ना उठाएं, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उंगलियां उठाएंगे। ये बात मैं आपकी बिल्कुल मानती हूं फैसल। नहीं, मैं एक बात में मुशाहिद भाई से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि हमें बोल्ड स्टेप उठाने चाहिए। तो आखिर हम इस पे गुफ्तगू क्यों ना करें कि सबसे पहले बोल्ड स्टेप उठा के इन तमाम दहशतगर्दों को जो यहां पे आके जमा हुए हैं, क्या जैस्मीन कोई सऊदी अरब से आया, कोई चेचनिया से आया, कोई ताजिकिस्तान से आया, क्या वहां अमरीकी अड्डे नहीं है? क्या वहां पे 99 साल के ठेके नहीं दिए? तो इनका फर्ज बनता है कि अगर जिहाद में है तो पहले अपने मुल्क को शुरू करें। ऐसा दहशतगर्द है जो हमने छोड़ा, हम तो जंग लड़ के हमारी तो बेख निकल गई है। स्वात ऑपरेशन से लेके वजीरिस्तान ऑपरेशन, मस्जिदों में बम, मसाजिद में बम, घरों में बम धमाके, हम तो कहीं महफूज नहीं है। किससे जंग लड़ रहे हैं? आखिर इन्हीं दहशतगर्दों से तो लड़ रहे हैं। जी मारवी, देखिए पॉइंट फैसल का जो है वो बहुत क्लियर है, उसमें कोई इख्तिलाफ किसी को हो नहीं सकता कि भाई जिस तरह का भी वो दहशतगर्द है, कोई भी उसकी नेशनैलिटी है, वो है तो दहशतगर्द, और उसको आपको जो है उसको आपको काबू करना है, उसको आपने उसकी एलिमिनेशन करनी है। लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी तो इवेल्युएट करना है कि आप 3 साल से एक स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। 14 पॉइंट रेजोल्यूशन में आपको गाइडेंस हमने दी थी, पार्लियामेंट ने एग्जीक्यूटिव को गाइडेंस दी थी कि इस तरह से आपने अपनी पॉलिसी चलानी है। आपने उस हर
पॉइंट की वायलेशन की और देयरफॉर आप इतने बड़े डिजास्टर पे बैठे हुए, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मीनिंग ये कि पॉलिसी जो हमने आपको दी थी आपने फॉलो नहीं की, आपकी सुसाइड बॉम्बिंग्स बढ़ गई, आपके ड्रोन अटैक्स बढ़ गए, आपके लोग ज्यादा शहीद हुए, ज्यादा मैस हुआ है, मिलिटेंट्स अभी कभी तक धन आते फिरे और आपने डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि उन लोगों के साथ जिसके साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं और उन लोगों के साथ जिसके साथ आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो पॉइंट कुछ यूं है कि थोड़ा स्टेप बैक की जरूरत है और थोड़ा इवैल्यूएट करने की जरूरत है कि अब हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे किसी भी सूरत में 14 पॉइंट रेजोल्यूशन की वायलेशन। या तो वो 14 पॉइंट रेजोल्यूशन 2 हफ्ते की जाया थी, वो सारी मेहनत, वो सारे पैसे जो जाया हुए जॉइंट रेजोल्यूशन में वो जाया थी, आई डोंट थिंक सो, वो अच्छी रेजोल्यूशन थी, उसको आप इवैल्यूएट करते हैं। हमने रेजोल्यूशन इंप्लीमेंटेशन ट्रैकिंग सिस्टम पीएमएल ने बनाया था, उस पे इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने कितने व्हाइट पेपर्स इनके खिलाफ दिए, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप तो खैर अब ऑपोजिशन में जा रही हैं, रिक्वेस्ट किया आपने, बट आपकी पार्टी हैज आल्सो जॉइंड पीपल्स पार्टी, तो वो बिल्कुल अच्छी बात है, तो इन पे अच्छी बात है। अब ये मिलके नहीं देखें, अब ये मिलके जवाब दें। किधर हैं वो सारे वजीर 15, 16, 18 सबके सब जवाब दें। सिर्फ फैसल रजा आब्दी तो आप जवाब नहीं देंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो सारों को जवाब देना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, तो सारों को जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। कौम को बेहतर करने के लिए आए थे ना, अवाम को बेहतरी देने के लिए आए थे, तो अब अवाम की बेहतरी अब सिर्फ फैसल रजा आब्दी से हम नहीं पूछेंगे। पॉइंट्स पर बार-बार आप इसरार करेंगे, 14 पॉइंट्स पर आप बार-बार इसरार कर रही हैं। उन 14 पॉइंट्स में क्या एक पॉइंट ये नहीं है कि ड्रोन हमले नहीं होंगे? एब्सोल्युटली, और उसके लिए हमने एहतजाज किया। आपको याद होगा इमरान खान साहब के धरने से मारवी मेमन साहिबा, जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जब आवाम बाहर निकलेगी, जब आवाम बाहर निकलेगी, हर बात पे आवाम निकलेगी। जब एक पार्लियामेंट, इलेक्टेड पार्लियामेंट बैठी हुई है, तो आपको ये एनालाइज करना है ना, मुशाहिदुल्लाह खान साहब को भी ये एनालाइज करना है। मैं सिर्फ इसमें लास्ट एक पॉइंट ये करना चाहूंगी जैस्मिन, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। हम फ्राइडे के दिन एक अच्छा फैसला करें कि जो नेक्स्ट ड्रोन अटैक आएगा उसको, और हम ये रेजोल्यूशन दे चुके हैं, आपको याद है हमने एक जर्नल मोशन दिया था, कुछ मेंबर्स ने पार्लियामेंट के, उसमें पीएमएल भी था कि उसको ड्रोन अटैक्स को शूट डाउन करें, उसको शूट डाउन करने की हम आर्म फोर्सेस को इजाजत दें, हुकूमत को इजाजत दें। ये आपको रेजोल्यूशन 2, 4, 5 हफ्ते पहले मैंने खुद ड्राफ्ट किया था, अभी तक उसको ये सामने क्यों नहीं लाए? हम फ्राइडे को पूछेंगे कि वो रेजोल्यूशन वापस लेके आए और हमें इजाजत देना चाहते हैं अपनी आर्म फोर्सेस को। माधवी, दूसरा सवाल भी तो सुन लिया करने ना। आप चाहती हैं कि हुकूमत वक्त, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान की अफवाज को ये ऑर्डर दे कि अगले ड्रोन के तैयारे को गिरा दिया जाए, इज दैट करेक्ट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये सॉवरेंटी की जो है वायलेशन है, और जब या तो वो करें या तो नेटिव सप्लाईज बंद कर दें, इधर और कर दें। चले आपको डर लगता है उनको इधर कर लें या और कर लें, आप इधर कर लें या और कर लें, नेटो सप्लाईज, फिर आपको रास्ता मिल जाएगा। देखें, हर चीज का बदला जज्बाती तरीके से, वॉर लाइक, जज्बाती नहीं है, दिस इज अ वेरी इमोशनल जज्बाती नहीं है। यू ठीक है, आप गिरा के देख लें, चले गिरा के देख लें, ये भी करके देख लें। जब इंसान की जो कुर्सी आवाम के साथ कनेक्टेड होती है, जब सेल्फ सफिशिएंसी इकोनॉमिक होती है, तो सारी चीजें मुमकिन है। जब आपकी कुर्सी वॉशिंगटन पोस्ट के साथ आपकी कुर्सी जो है एसोसिएटेड है, तो फिर कहां से बोल्ड कुर्सियां तो वॉशिंगटन पोस्ट के साथ बहुत सारे लोगों की एसोसिएटेड है। यहाँ तो जितने लोग आए हैं, चाहे वो आमिर हो या इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट से एसोसिएटेड हैं। बट क्या इसके लिए पाक अफवाज तैयार है? हमारे एयर चीफ ने एक दफा पहले भी ये बयान दिया था कि अगर हुक्म दिया जाए हुकूमत की तरफ से तो ड्रोन गिरा सकते हैं। ये गिरा दें तो क्या होगा? एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू वापस इस्लामाबाद ले जाऊं और अपने 2 इंपॉर्टेंट गेस्ट से बात करूं, एक और बहुत ही अहम गेस्ट हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं दुबई से, और उनसे मैं 2 सवालात जो हैं पाकिस्तान की आवाम के हवाले से पूछना ज़रूरी समझती हूँ। साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ एंड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फॉर्मर पाकिस्तान के हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच जनरल मुशर्रफ। अस्सलाम वालेकुम।